A very good morning and Jai Hind, 12th class students. How are you? I hope you are absolutely fine at your home. Miss you, school? I miss you, all of you. And today, students, I will continue chapter 2nd, concept of national income. And yesterday, I have explained two topic related to national income, meaning of national income, economic territory or domestic territory. What do you mean by economic territory? And what do you mean by normal residents? Getting? So now I will continue this chapter, and your next topic is very important topic, national income and aggregates concept. Very important, because in the next chapter we will discuss how can calculate national income of any country. There are three methods: income method, expenditure method, and production method. But these three methods, when we calculate national income by the help of these three methods, when we needs of aggregates concept. So before calculating of this, we have to explain aggregates concept. So students, there are 8 aggregate concept related to national income. Getting? First is GDP, MP. You are aware for this, gross domestic product at market price. Second is gross national product at market price, that is GNP/MP, gross national product at market price. Third one, NDP/MP, net domestic product at market price. Fourth one, NNP/MP, net national product at market price. Fifth is NNP/FC. Here is difference between MP or FC. This is net national product at MP, or this is net national product at FC. And sixth one is NDP/FC. Again you can see here is NDP/MP and here is NDP/FC. Third point and sixth point you can compare. Net domestic product at factor cost. Getting? हमें both concept पढ़नी है, at market price as well as factor cost. Next one, 7 is GNP/FC, gross national product at factor cost. और last is जो आपका first है GDP, what? Here is MP, so here is FC. So students, we have to discuss 8 national income and related aggregates concept. These aggregate concept related to national income. So we have 8 aggregate concept: GDP/MP, GNP/MP, NDP/MP, NNP/MP. So these 4 related to market price. MP for market price. These 4 concept, and these repeated, but difference between these and these, FC. FC for factor cost. Getting? I will discuss later on what do you mean by market price and what do you mean by factor cost. Now we have to discuss one by one all related to aggregate concept. Getting? So students, are you getting my point? I hope you are clear. We will study 8 aggregate concept. Getting? 4 related to market price and 4 related to factor cost. So we will discuss one by one. First is GDP/MP, or you can say gross domestic product. Gross domestic product at MP. What do you mean by gross domestic product? Students, it is not a new concept. Gross domestic product is the final value of goods and services
GDP MP is the final value of goods and services produced within domestic territory GDP MP is the final value of goods and services produced within a domestic territory in a accounting year. So this is no new definition, you have already aware GDP MP. तो GDP MP you can see GDP MP, तो D for domestic. जब आप लोग यहाँ पे GNPMP पढ़ रहे होंगे तो डोमेस्टिक विल बी कन्वर्ट इनटू नेशनल, बस ये डिफरेंस है बेटा. GDPMP एंड GNPMP में क्या हो जाएगा डोमेस्टिक के प्लेस पे नेशनल, बिकॉज इट विल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो नेशनल आते ही इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ नेशनल टेरिटरी इन अ अकाउंटिंग ईयर. आई होप क्लियर होगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ कैन कैलकुलेट जीडीपी. तो देयर आर टू features about this definition. First is GDP is a gross value. GDP is a gross value. So student, I hope you are aware that what is the difference between gross and net. If यहां पर net कर दें आप लोग तो क्या डिफरेंस होगा ग्रोस और नेट का. I have already discussed gross minus net is equal to what? Depreciation. तो जीडीपी में क्या है नेट वैल्यू ना होकर क्या हो गई ग्रोस वैल्यू. एंड सेकेंड थिंग इट इज ए ग्रोस वैल्यू एंड इट इज ए मार्केट वैल्यू. सारी गुड्स की मार्केट वैल्यू है और ना कि एफसी फैक्टर कॉस्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो जीडीपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू features है it is a gross value and market value. Now question arise how can calculate GDP. तो GDP कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा बेटा इन अ कंट्री जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई इनटू प्राइस. यानी जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एक्स. सपोज दैट गुड एक्स प्रोड्यूस हो रही है किसी भी इकोनॉमी में और इनटू प्राइस एक्स, उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करें. ये तो बेटा एक गुड्स की बात कर रहे हैं. जब आप लोग कंट्री में देखोगे इट इज ए मार्केट वैल्यू यानी दिस इज मार्केट वैल्यू. बट व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी कंट्री में थाउजेंड्स गुड्स प्रोड्यूस होती हैं और उनकी वैल्यू निकालने के लिए इट इज ए मोमेंटम टास्क. बट गवर्नमेंट स्टेटिकल डाटा के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को डाटा सेंड करते हैं देन आफ्टर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. करते कैसे हैं यानी जीडीपी एमपी इट विल बी जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सपोज दैट क्वांटिटी ऑफ एक्स गोल्ड इनटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी वाई गोल्ड इनटू प्राइस वाई प्लस क्वांटिटी ऑफ जेड इनटू प्राइस जेड प्लस क्वांटिटी ऑफ एन into price of n. So it is a GDP. GDP is a summation of all market value, all the final value of goods and services प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री. जितनी भी मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको उनके प्राइस से उनकी क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं. देन आफ्टर वी कैन ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या आ जाएगा जीडीपी एमपी. आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा. जीडीपी एमपी इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देना आपको फाइनल वैल्यू एंड डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर. स्टूडेंट्स एक और मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे आप लोग. मैंने आप लोगों को बताया नेशनल इनकम और जीडीपी वी विल कैलकुलेट इन नेक्स्ट चैप्टर इन अ थ्री मेथड. व्हाट इज थ्री मेथड? फर्स्ट इज ये प्रोडक्शन मेथड था, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड. और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस हाउस होल्ड सेक्टर. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट. दिस टॉपिक इज आल्सो in economy there are how many sector? Four sector in the economy. What are four sector? Household sector yani consumer, farm sector yani producer, government sector और last rest of the world yani export minus import with other countries. So you can see GDP MP is equal to C plus I plus G or plus X minus M. What do you mean by GDP MP means
हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर गुड्स प्लस मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रोड्यूसर गुड्स प्लस जितनी गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो इट इज this formula is calculated by GDPMP, but we will discuss it later on in detail. This getting everyone? I hope clear होगा आपको. फर्स्ट कंसेप्ट GDPMP, it is equal to C plus I plus G plus X minus M. I hope ये clear है. So now your second term GDPMP clear है. सेकेंड रिलेटेड कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आप लोगों को? GDPMP एंड सेकेंड, दिस इज फर्स्ट. सेकेंड ग्रोस GNP MP. फुल फॉर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं स्टूडेंट्स, नोट्स में मैं आप लोगों को सेंड करूंगा. आई विल सेंड नोट्स tomorrow. This lecture for 29, today is 28, but your lecture for 29. GNP MP, gross national product at market price. Are you getting my point? What are the difference between GDP and MP? Domestic and national. G for gross, here is gross. P for product, here is product. MP. But difference क्या है? Here is domestic and here is national. So what is the difference between domestic and national? So you can see gross national product यानी GNP MP we can calculate by the help of GDP यानी GDP MP और इसमें प्लस करेंगे हम NFIA. What do you mean by NFIA? NFIA means net factor income from abroad. एक ही बार मैंने फुल फॉर्म लिख दिया. देन आफ्टर वी विल यूज आई विल यूज ओनली NFIA. गेटिंग? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इफ वी एड NFIA in GDP, then we calculate or we find GNP/MP. Here is gross domestic product and here is gross national product at market price. So what is the difference between domestic and national? Difference between domestic and national is this is domestic और दिस इज नेशनल. डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या क्या स्टूडेंट्स हम लोगों ने डोमेस्टिक में हमने क्या कर दिया? नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक से ऐड किया NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. और एक इक्वेशन है, अगर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? GDP/MP बाय द हेल्प ऑफ GNP/MP क्या हो जाएगा? और इफ वी कैलकुलेट GDP/MP, GDP/MP इज इक्वल टू किसमें से? GNP/MP. GNP/MP इधर जाके किसमें हो जाएगा बताइए? माइनस में, माइनस NFIA. सो नेशनल में से अगर आप लोग NFIA माइनस कर दोगे व्हेन वी गेट GDP/MP. यू कैन सी नेशनल से किस पे जाना है? डोमेस्टिक पे. देन माइनस NFIA. आई होप क्लियर होगा ये. ध्यान से सुनो बेटा, डोमेस्टिक एक नैरो कंसेप्ट है और नेशनल वाइडर कंसेप्ट है. नैरो कंसेप्ट में आपने ऐड किया NFIA. गेटिंग? क्या बन गया? नेशनल. नेशनल में NFIA हम ऐड नहीं करेंगे बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं दोबारा बोल रहा हूं. वी कैन नॉट ऐड NFIA in national because in national already NFIA include. और डोमेस्टिक में कभी NFIA माइनस नहीं कर सकते. गेटिंग? नेशनल में से माइनस करके डोमेस्टिक पे. आप लोगों को आई होप क्लियर होगा. इफ वी वांट टू गो फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल देन वी कैन ऐड NFIA एंड इफ वी वांट टू गो नेशनल टू डोमेस्टिक देन वी डिडक्ट NFIA. गेटिंग स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर होगा. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय NFIA? क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय NFIA? ये होता क्या है NFIA? लिसन एवरीवन. फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? फैक्टर इनकम. आप लोग अवेयर हो गए, जब हम प्रोडक्शन करते हैं रिक्वायरमेंट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंड ऑल दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग. By the help of these factor of production, we can produce anything. And after the production, then after we have to pay factor income. जिससे हमने लैंड लिया उसको क्या देना होगा? रेंट.
और लेबर को वेजेस और सैलरी, देन कैपिटल को इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। तो दिस अ फैक्टर इनकम। अब सपोज दैट आप लोग ये देखो, जब भी हम जीडीपी कंट्री की बात करते हैं, सपोज दैट दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। ड्राइंग अच्छी नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड। जीडीपी इट इज ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओनली जो विद इन बाउंड्री प्रोडक्शन हो रहा है जीडीपी उसकी वैल्यू है। इट इज डोमेस्टिक, वेरी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक, हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा हो, गेटिंग। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नेशनल, नेशनल में क्या होता है, आप लोगों की ओपन इकोनॉमी है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। हमारी कंट्री के कुछ पर्सन अदर कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं और अदर कंट्री के पर्सन हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट किसी पर्सन ने अदर कंट्री में लैंड परचेज कर रखी है, उसने बिल्डिंग वहां पे बना रखी है, देन आफ्टर क्या गेट करेगा वो, रेंट। फैक्टर इनकम देखना आप लोगों को मैं फैक्टर इनकम बोलूंगा। किसी पर्सन ने अदर डिफरेंट कंट्रीज में, किसी ने बहुत सारे पर्सन ने डिफरेंट कंट्रीज में वहां पर प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, लैंड परचेज कर रखी है, देन आफ्टर ही और सी गेट फैक्टर इनकम एज ए रेंट, गेटिंग। आपकी कंट्री के बहुत सारे पर्सन अदर कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, अदर कंट्री में, और वहां से क्या अर्न कर रहे हैं, सैलरी और वेजेस। दैट इज लेबर को क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम। सेकंड फैक्टर ऑफ इनकम वेजेस और सैलरी। आपकी कंट्री के बहुत सारे लोगों ने अदर डिफरेंट कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, क्या गेट करेंगे वो, इंटरेस्ट, गेटिंग। 3 मैंने कंपोनेंट बताया आपको। फर्स्ट इज व्हेन वी कैन रिसीव रेंट फ्रॉम अदर कंट्री, when we can receive wages and salary for other country, and when we can receive interest of other country, and last बहुत से producer, for example अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप etc, all these producer produce various goods in other country as a entrepreneur, then they people get what, they people get profit. Profit is a fourth factor of product, fourth factor of income, getting। जिसकी लैंड लगी थी उसने लैंड रेंट लिया, जिसने अदर कंट्री में जाके वर्क कर रहा है लेबर के फॉर्म में, एज वो क्या लेगा, आइदर इज सैलरी और आइदर इज वेजेस, और जिसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है वो क्या लेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और जिसने वहां पर जाकर प्रोडक्शन कर रखा है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या लेगा, प्रॉफिट। जो वहां से अदर कंट्रीज से आ रहा है, दिस इज फैक्टर इनकम। I hope you people clear फैक्टर इनकम, गेटिंग फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम डिफरेंट कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में आ रही है। ऑन द अदर हैंड अदर कंट्री के लोग सेम आपकी कंट्री से फैक्टर इनकम लेके जा रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। यानी अदर कंट्रीज से, ये डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्रीज से इनकम कहां आएगी, हमारी कंट्री में, गेटिंग। ये क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अदर कंट्री से इनकम कहां पाए, हमारी कंट्री में। किस फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। यानी आप किसी भी तरीके कोई डॉक्टर वर्क कर रहा होगा अदर कंट्री में, क्या ला रहा होगा वो, फीस ला रहा होगा। कोई इंजीनियर वहां पे वर्क कर रहा होगा, सैलरी ला रहा होगा। कोई प्रोड्यूसर ने वहां पर बिल्डिंग परचेज कर रखी होगी, किसी पर्सन ने वो रेंट लेके आ रहा होगा। यानी किसी भी फॉर्म में अदर कंट्रीज से जो इनकम आ रही है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम वर्ड लगा है, एफ फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम, यू कैन सी फ्रॉम अब्रॉड, गेटिंग। अब देखो आपकी कंट्री में भी डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके वर्क करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर करते हैं। वो क्या करेंगे, यहां से पैसे को लेके जाएंगे। इट विल फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हियर इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी क्या बन जाएगा, एफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। व्हाट इज द डिफरेंस, एफ और टी, गेटिंग, दिस इज नॉट आई, टी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और स्टूडेंट्स difference between factor income from abroad और factor income to abroad, it is NFIA, net factor income abroad, यानी फीफा माइनस फीटा। आई होप क्लियर होगा आपको। व्हाट डू मीन बाय फीफा, फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अदर कंट्री से जो इनकम हमारी कंट्री में आ रही है उसको तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अदर कंट्री में जो हमारी कंट्री के लोग अदर कंट्री में लेके जा रहे हैं उसको क्या करेंगे, फीटा, फैक्टर इनकम
टू अब्रोड, उसको क्या कर देंगे माइनस, फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू NFIA, यानी NFIA, व्हाट डू मीन बाय NFIA? NFIA यही मेंशन करता हूं ताकि आपको याद रहे, NFIA इज इक्वल टू फीफा FIFA माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस FITA, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप लोग फीफा माइनस फीटा कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज NFIA। गेटिंग और NFIA को किस में ऐड करेंगे? GDP-MP में। when we add NFIA into GDP-MP, then we can get easily GNP-MP. What is the difference between domestic and national? Difference between domestic and national is NFIA. I hope clear होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको NFIA कैलकुलेट करना है तो NFIA is equal to NFIA, एक तो फीफा माइनस फीटा हो गया, वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इफ यू आर मतलब एग्जामिनर ने आपको कंपोनेंट गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। बट इफ एग्जामिनर गिवन यू GDP-MP एंड GNP-MP, ऐसा क्या हो सकता है, एंड यू वांट टू कैलकुलेट NFIA नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, तो किसका डिफरेंस है? डोमेस्टिक और नेशनल का। किस में से हमें माइनस करना है? नेशनल माइनस डोमेस्टिक, यानी NFIA इज इक्वल टू नेशनल माइनस डोमेस्टिक। अब बताओ क्लियर है या नहीं? आई होप क्लियर होना चाहिए आप लोगों को बहुत अच्छे से। दो कंसेप्ट पढ़ाई मैंने आपको। टाइम कितना हुआ है? GDP-MP एंड 21 मिनट्स। अभी एक और पढ़ा सकते हैं, टाइम है। GDP-MP क्लियर है? ये तो कोई नई कंसेप्ट है नहीं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं। बस आज मैं किस पे फोकस दे रहा हूं? डोमेस्टिक टेरिटरी। GDP-MP इज द फाइनल वैल्यू। पता है आप लोगों को देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, बट GDP इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। आज मेरा फोकस इस पे ज्यादा है, डोमेस्टिक टेरिटरी। GDP में क्या है? विद इन बाउंड्री जो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो अदर कंट्री के लोग हों, चाहे वो हमारी कंट्री के लोग हों, बस प्रोडक्शन होना चाहिए कंट्री के बाहर, ना बाहर से आना ना बाहर से जाना। बाहर से मीन्स ना अब्रॉड को सेंड करेंगे ना अब्रॉड से लेंगे। तो अगर कंट्री के विद इन बाउंड्री जितना प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज GDP। गेटिंग एवरीवन। और अगर आप लोगों को क्या लाना है, देन आफ्टर सेकंड कंसेप्ट जो बिल्कुल न्यू मैंने आप लोगों को बताया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, GNP-MP। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GNP-MP? व्हेन वी ऐड GDP-MP प्लस NFIA, NFIA को आप GDP-MP में प्लस कर दोगे, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट GNP-MP। डोमेस्टिक कन्वर्टेड हो गया नेशनल में। गेटिंग? और NFIA कैसे कैलकुलेट किया आपने? NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फीफा माइनस फीटा। बहुत अच्छा एग्जांपल है फीफा माइनस फीटा। सो स्टूडेंट्स, फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू NFIA, नेट फैक्टर इनकम NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज इक्वल टू फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गेटिंग? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और क्या करेंगे? माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इट इज NFIA। गेटिंग? और NFIA को आपने GDP-MP में प्लस कर दिया, तुरंत बन गया GNP-MP। अब सपोज दैट आपको ऐसा भी मिल सकता है कि GDP-MP आपको कैलकुलेट करना है और एग्जामिनर ने क्या गिवन है? GNP-MP दे रखा है, NFIA यूपी ला रहा है। नेशनल में से किसको माइनस करेंगे? नेशनल से। ये भी ध्यान देखने वाली चीज है, आपको क्या करना है? ग्रोस है एज इट इज। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या कर देंगे? माइनस NFIA। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो देयर आर 8 कंसेप्ट में से मैंने आप लोगों को केवल 2 कंसेप्ट बताइए। गेटिंग? वन मोर थिंग्स स्टूडेंट्स, NFIA कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट इज डिपेंड ऑन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर अदर कंट्री से ज्यादा आ रही होगी, यानी अदर कंट्री से अर्निंग ज्यादा आ रही होगी आपकी कंट्री में, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ये ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्लस में आएगा। बट अगर कंट्री में ऐसा हो रहा है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आप लोगों का मैथ के स्टूडेंट हो, अगर ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा आ जाएगी, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। गेटिंग? अगर फीटा आपका ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली NFIA आपका किस में आएगा? माइनस में। तो आप लोग इससे प्रॉब्लम मत करना, NFIA may be positive and may be negative, it is depend on factor income from abroad. If factor income
from abroad is greater than factor income to abroad, then NFIA is positive. And on the other hand, if factor income to abroad is greater than factor income from abroad, then NFIA will be minus. Getting? I hope clear होगा students. Yes, next concept करें. Third important point. First is GDP-MP, second is GNP-MP, and इसको रफ कर रहा हूं मैं. थर्ड इज NDP-MP. वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे 8 कंसेप्ट के लिए. थर्ड इज NDP-MP. गेटिंग? NDP-MP. अब आप कंपेयर करके देखो NDP-MP में क्या डिफरेंस है. GDP-MP से आप इसको कंपेयर करो GN, बाकी आपका सेम है, बस चेंजिंग किसमें है, ग्रोस और व्हाट इज दिस. फर्स्ट वाला क्या होता है, हियर इज ग्रोस, हियर इज एन. इसका आपको पता है, दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल, बट हियर इज ग्रोस और हियर इज नेट. गेटिंग? ग्रोस और नेट. और ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाया. ग्रोस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन. तो इट इज नॉट अ टिपिकल कंसेप्ट. We can calculate easily by the help of GDP. NDP-MP is equal to GDP-MP. क्या करेंगे बेटा, देखो आप लोग कहां से कहां पे जाना है, हमें ग्रोस से नेट पे जाना है. तो ग्रोस कंसेप्ट में क्या इंक्लूड होता है, डेप्रीशिएशन. तो बाय द हेल्प ऑफ डेप्रीशिएशन, इफ वी डिडक्ट डेप्रीशिएशन फ्रॉम ग्रोस वी कैन कैलकुलेट. Getting? By the help of this formula you can calculate easily NDP-MP. तो NDP-MP it is a net value और it is a gross value. तो gross domestic product MP माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो अब आपका क्या आ गया कंट्री का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, इट इज अ नेट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बस नेट वर्ड ऐड करना है, एज इट इज रहेगी. इट इज द नेट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ कंट्री. डोमेस्टिक क्यों, बिकॉज इट इज NDP-MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. आई होप क्लियर होगा. और इसका आपका दूसरा भी एंड टू एंड आप देख सकते हो. सपोज दैट आप लोगों को GDP-MP कैलकुलेट करना है. GDP-MP किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ NDP-MP. व्हाट विल, क्या करना चाहिए बेटा, नॉर्मली सिंपल है, इक्वेशन बन गई. NDP-MP इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन. गेटिंग? फिर से देखिए यहां पर ग्रोस एंड व्हाट, नेट. ग्रोस से किस पे जाना है, नेट से. मेरे एक साइड ग्रोस, दूसरी साइड नेट, बीच में क्या बन गया, मैं डेप्रिसिएशन. गेटिंग? कैसे, ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे. ग्रोस कैसी है, ग्रोस वाइडर कंसेप्ट है, नेट नैरो, ये ग्रोस वाइडर कंसेप्ट है, नेट नैरो कंसेप्ट है. तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. गेटिंग? और इसका इनवर्स, नेट से ग्रोस पे जाने के लिए प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन. आई होप क्लियर होगा. और वो क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए व्हाट विल ऐड, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू वांट टू गो नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA. बेटा इसको ध्यान से रखो. बस अभी मैंने आपको नॉर्मली 2 कंसेप्ट पढ़ाई है. Gross, difference between gross and net you have already discussed. This is depreciation. And today's a new topic is domestic and national. Domestic और national का difference क्या हो जाएगा, NFIA. Getting? So you can calculate easily NDP-MP by the help of GDP-MP. Getting? और ये दूसरी भी कंसेप्ट देगी. Suppose that एक चीज और देखो, आपको GDP-MP है, आपको by the help of GDP-MP and GNP-MP and you want to calculate NNP-MP. NNP-MP कैलकुलेट करना है. क्या होगा, NNP-MP और GDP-MP का डिफरेंस इज इक्वल टू GDP में से कैलकुलेट करना है GDP-MP. GDP-MP में से पहले G से
इस पे जाओगे आप, क्या हो जाएगा, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए वी हैव टू माइनस डेप्रिसिएशन। मन में सोचो आप लोग क्या बन गए, अब माइनस डेप करके क्या बन गए, जीडीपी एमपी किस में चेंज हो गया बेटा, जी को ग्रोथ से नेट डेप्रिसिएशन माइनस करके ये बन गया आपका एनडीपी एमपी। और देन आफ्टर क्या करोगे आप, एक ही बार आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे और जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे माइनस डेप किया आपने, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए डोमेस्टिक पे प्लस कर दोगे आप एनएफआईए प्लस एनएफआईए। So if you people add in GDP MP, माइनस करोगे डेप, then gross value converted into net value and plus करोगे NFIA, then domestic will converted into net and easily we can get NNP MP, net national product market price. So students, for today is sufficient. We have discussed only 3 concepts regarding to national income and tomorrow and whatever your term, we will continue this aggregate concept. Getting? Student, I will send PDF of this notes and thank you so much 12th class. Stay home and thank you.